بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں یہ ویڈیو راشٹریہ مسلم مورچہ کی طرف سے بنا رہا ہوں۔ کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وسیم رضوی، جو ابھی اس کا نام جتیندر نارائن تیاگی ہو گیا ہے، اس کے تھرو پھیلائے جا رہے ہیں اور یہ خرافات عام کیا جا رہا ہے کہ قرآن ایک فیک کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مان رہا۔ کہ پہلے اس نے قرآن کی 26 آیات پر اعتراض کیا تھا، تو ہم نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھتے ہوئے MNTV پر 2 ویڈیو جاری کیے۔ میں MNTV سے التجا کرتا ہوں کہ اس کا بھی لنک نیچے دے دے تاکہ جو بھی وہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اب جو اس میں حد پار کر کے اسلام کو ایک آتنکوادی مذہب کہہ رہا ہے یا آتنک سے جوڑ رہا ہے، اور اسلام مارنے کا حکم دیتا ہے اور کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا، اس طریقے سے خرافات پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس سے کچھ مسلمان جو علم نہیں رکھتے وہ بھی بدزن ہو سکتے ہیں۔ لیکن خاص کر یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ SC ST OBC کے لیے بنا رہا ہوں اور بہوجن سماج کے لیے بنا رہا ہوں، جو ان خرافات کو سن کر بدزن ہو سکتے ہیں اسلام سے۔ تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ جو شخص ہے بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، اور پھر ایک مرتبہ میں کہہ دوں، میں بتا رہا ہوں کہ میں اس کو جواب نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میں اسے جواب دینے کے لائق سمجھتا ہی نہیں۔ میں صرف یہ ویڈیو بہوجن سماج کو آگاہ کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہ کس طرح کا جھوٹا انسان ہے، یہ بتانے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، خصوصاً SC ST OBC اور بہوجن سماج جو ہے ان کے لیے۔ تو دیکھیے یہ کس طرح، پہلی بات یہ جھوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جب کسی انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، آپ خود دیکھ لیجئے، تو اس نے بتایا کہ وہ اسلام کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کو نکالا گیا ہے۔ جی شکریہ۔ آپ کو اپنا نام جتیندر نارائن تیاگی سننے کی عادت ہو گئی ہے، یا کوئی بلاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کس کو بلا رہے ہیں؟ نہیں بالکل عادت ہو گئی ہے، اور میں ایک میچیور انسان ہوں، اور جس طرح سے حالات بدل رہے تھے اور جس طرح سے دیکھیں، میں نے اسلام جو ابھی آپ کی میں دیکھ رہا تھا، یہ جو ملا پریشان ہے، میں نے اسلام چھوڑا کب ہے؟ ہم کو تو نکال دیا، وہ کیوں؟ میری سزا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ میری، تو یہ ایک جھوٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیے جب کوئی انسان اپنے مذہب کی کسی بات کو نہیں مانتا، نہ اس کی کتاب کو مانتا ہے، نہ اس کے مہاپروشوں کو مانتا ہے، نہ وہ بھگوان کو مان رہا ہے، جیسے اس نے کہا اللہ کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کیا، اور قرآن کو ایک فیک کتاب بتایا ہے، تو اس کے بعد وہ خود بخود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی سرٹیفکیٹ دے کے واپس جانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا ایک فنکشن کر کے اس کو نکالا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو تو جس اللہ کا انکار کر رہا ہے اسی اللہ نے اسے نکال دیا، جس رسول کا انکار کر رہا ہے اسی رسول نے اسے نکال دیا، جس قرآن کا انکار کر رہا ہے اس قرآن نے ہی اس کو نکال دیا ہے۔ یہ بات وہ خود جانتا ہے، اسی لیے وہ ایک پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب وہ کہیں اور جا کر پناہ لیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کئی ایک کیسز چل رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ سب اس نے کیا ہوگا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں۔ تیسری بات، پولیٹیکل ایجنڈا بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے جو اسلام پر الزام لگا رہا ہے، اور اسی الزام کو میں رد کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جہاں پر کہتا ہے آیتوں سے انکار کرنے والے غیر مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی غیر مسلم ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو مار دیا جائے۔ یہ کسی دھرم میں ہے؟ آپ ہمیں ایک دھارمک پستک ایسی بتائیے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یا تو میرے میں آؤ نہیں تو مار دیں گے۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن آتنک سکھاتا ہے اور کسی اور مذہب کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا اور مارنے مرنے کی بات کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، اور اسلام کے اندر کب اور کس لیے جنگیں ہوئی ہیں اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کے اندر خاص کر وہی وقت پر جنگ کا حکم دیا گیا ہے، ایک جب انسان پر ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہو، اس وقت اس کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے، یہ سبھی لوگ مانتے ہیں۔
कोई भी ऐसा करेगा, यहाँ तक कि मुल्क पर भी कोई दूसरा अटैक करे तो उसको हक है कि वो उसका दिफा करे। कोई अपने घर पर अटैक कर रहा है तो उसको हक है उसका दिफा करे। कोई आपके हुकूक छीन रहा है, आपको पर जुल्म कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आपको दिफा करने का पूरा हक है। इतना हक होने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि मक्के की ज़िंदगी में जब रसूल खुदा अपना प्रचार कर रहे थे तो जो लोग इस्लाम ला रहे थे उन पर बहुत सख्तियां की गई, बहुत जुल्म किया गया, और लोग इतने तंग आ गए कि रसूल खुदा पर आकर उन्होंने ये बात कही कि हमको लड़ने की इजाज़त दीजिए। लेकिन तब भी रसूल खुदा ने लड़ने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब उनको निकाला गया, शहर बदर किया गया, उस वक्त आयत, देखिए आयत है मेरे सामने, सूरा नंबर 22 सूरह हज और आयत नंबर 40। वो क्या कह रही है आयत? उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। उज़िना, इजाज़त दी गई उन लोगों को जिन पर जुल्म हुआ है। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह भी अब उनकी मदद करेगा। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बनल्लाह। उनका गुनाह क्या था? उन पर क्यों जुल्म किया गया? सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह ये कह रहे थे। उनको निकाल दिया गया। जब ऐसा किया गया तब उनको इजाज़त दी गई। देखिए, क्या ऐसी आयतें आपको बताई जाती हैं? नहीं बताई जाती हैं। दूसरा ये कि चलो अपने ऊपर जुल्म हुआ तो हम दिफा करते हैं, लेकिन कहीं भी किसी दूसरे ऊपर भी जुल्म हो रहा हो, जैसे आपके पड़ोसियों पर जुल्म हो रहा हो, आपके रिश्तेदारों पर जुल्म हो रहा हो, चाहे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, चाहे किसी और मजहब के लोगों पर जुल्म हो रहा हो, तो उनके लिए भी लड़ना, ये भी इस्लाम सिखाता है। आज भी देखिए, जो भी जुल्म हो रहा है सब मिलकर लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यही कुरान सिखाता है कि जब मजलूमों पर जुल्म हो, जब कमजोर लोगों पर जुल्म हो, जब औरतों पर जुल्म हो, जब बूढ़ों पर जुल्म हो, उनके हुकूक ना दिए जा रहे हों, जब बच्चों पर जुल्म हो, तब तुमको चाहिए कि लड़े। देखिए मेरे सामने आयत है, इसका भी मैं हवाला आपको देता हूँ। ये आयत है सूरह निसा, सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 75। क्या कह रही है? वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, तुम क्यों नहीं लड़ते अल्लाह की राह में? वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी, जबकि ज़ईफ कमज़ोर तबका जो है, और जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर आदमी हैं, जो कमज़ोर औरतें हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, कमज़ोर यानी उन पर जो जुल्म हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको आप क्यों मदद नहीं करते? उनके हुकूक के लिए क्यों नहीं लड़ते? उनको जुल्म से क्यों नहीं बचाते? यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमु अहलहा। क्या कह रहे हैं? वो इतना तंग आ गए कि वो कहने लगे कि अरे अल्लाह, हमको यहाँ से, इस बस्ती से निकाल, क्योंकि यहाँ के लोग जालिम हैं। देखिए, जब जालिम होता है तो कोई ना कोई उनकी मदद करने वाला भी अल्लाह बनाता है, और मदद करनी चाहिए। तो उस वक्त इंसान को चाहिए कि उनका भी बचाव करे, अपना भी बचाव करे, यार जुल्म को खत्म करे। जुल्म को खत्म करने का नाम इस्लाम है, जुल्म को मिटाने का नाम इस्लाम है, एक पीस कायम करने का नाम इस्लाम है। और क्या दुआ करते थे वो? वजअल लना मिन लदुनका वलियन, और हमारे लिए कोई लीडर बना, ताकि हम मजलूम हैं, हम जो कमजोर हैं, हमारे लिए कोई खड़ा हो जाए। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और तू हमारी मदद कर, तेरी तरफ से कोई मदद आए यहाँ पर। तो देखिए, जालिम जब जुल्म करता है तो इंसान को खुद का दिफा करने का भी हक है, और दूसरों पर जुल्म होता है तब भी उसके लिए लड़ने का पूरा हक है, उसको लड़ना चाहिए, और उसको जुल्म से बचाने का हक है, उसको जुल्म से बचाना चाहिए। यही दो चीजें इस्लाम हुक्म दे रहा है। और क्या है कि अपने दीन पर कायम रहो और किसी पर जुल्म ना करो। कोई जुल्म तुम पर करता है तो तुम भी अपना दिफा करो, और अगर कोई दूसरों पर जुल्म करता है, चाहे किसी भी मजहब पर कोई भी जुल्म कर रहा हो, तब भी एक होकर लड़ना बहुत जरूरी है। तो यही दो चीजें सिखा रहा है इस्लाम। अब जो जंगें इस्लाम के अंदर हुई, वो कभी भी ना माल हासिल करने के लिए, ना तख्त व ताज हासिल करने के लिए, ना कोई हुकूमत हासिल करने के लिए हुई है, या तो अपने दिफा में हुई हैं, या दूसरों को जुल्म से बचाने के लिए हुई हैं। ये तो फितरी चीज है, ये तो हर कोई करता ही है। आप पर भी कोई जुल्म हो तो आप भी आगे बढ़ेंगे, और कोई आप पर जुल्म हो रहा है, कोई आपकी मदद करने आए तो उसकी भी आप मदद करेंगे। तो ये फितरी मजहब है, ये फितरत में है, ये सभी जानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये हक देता है कि अपना दिफा करें। देखिए, अगर हमारा कोई मजहब इसी तरह किसी को मारने का हुक्म देता, लड़ने का हुक्म देता, तो जो बहुजन समाज के बड़े महापुरुष गुजरे हैं,
उन लोगों को भी ये बातें पता होती और वो लोग भी कोई आवाज़ उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शाहू महाराज ने तो अपने वक्त के 25,000 रुपया देकर कुरान को ट्रांसलेट करने के लिए कहा। उस वक्त के 25,000 यानी आज के ना जाने कितने लाख या करोड़ होंगे। उस वक्त इतना पैसा देकर कुरान को मराठी में ट्रांसलेट कराना इस बात की दलील है कि वो कुरान को सही समझ रहे थे, कुरान को एक पवित्र किताब समझ रहे थे, कुरान को एक खुदा की किताब समझ रहे थे और कुरान को एक पीस की किताब समझ रहे थे। तो इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, वरना ये सब क्यों करते? तो क्या ऐसे महापुरुषों से बढ़कर हो गया ये जितेंद्र त्यागी? और आगे मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमारे पैगंबर पर नात लिखी है, यानी उनकी मदोसना की है, उनकी तारीफ की है। यहाँ इधर ये पैगंबर को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहुजन जिनको मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने हमारे पैगंबर की तारीफ की है, नात लिखी है। और भी मैं बता दूं आपको, और भी दलील दूं बहुजन के महापुरुषों की, तो देखिए श्री संत तुकाराम महाराज, उसका रेफरेंस भी दूंगा आपको। श्री संत तुकाराम महाराज ने अल्लाह पर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, यानी अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही दिलाता है। अल्लाह दवा अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सो ही होए, यानी अल्लाह जो चाहता है वही होता है। इसका देखिए रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, अभंग क्रमांक 444 गाथा देहूची प्रत, ये उसका रेफरेंस है। आपको शायद वहां पर मिलेगा, श्री संत तुकाराम संस्थान देहू पुणे में मिलेगा ये। तो ये पूरा रेफरेंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे महापुरुषों ने हमारे दीन की तारीफ की है, हमारे पैगंबर की तारीफ की है, हमारे कुरान की तारीफ की है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान हमारे ही बीच में उठकर ऐसी खुराफात बके? तो ये झूठा इंसान है। ये अब तो हमारे यहाँ से निकल गया है, लेकिन मुझे डर है कि आपके यहाँ पे आने के बाद वो ऐसी खुराफात बके या ऐसी खुराफात कहीं से ला दे और आपके दिल, आपके मजहब को भी बदनाम कर दे। और मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, ये जो महापुरुषों ने, जिन्होंने पैगंबर की तारीफ की है, जिन्होंने नात लिखा है, जिन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन कराने के लिए इतना पैसा दिया है शाहू महाराज ने, तो इन लोगों ने भी जातिवाद के खिलाफ काम किया है, भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ा है, गुलामी के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाजें उठाई हैं, महिलाओं पर जो अन्याय हो रहे उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है, मजलूमों का हक दिलाने के लिए उठे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो मजलूमों के लिए काम करते थे। और इन लोगों ने अगर कुरान की तारीफ की है, हमारे नबी की तारीफ की है, हमारे दीन की तारीफ की है, तो वाकई हमारा दीन मजलूमों के लिए है। और हमारा दीन, वो इस्लाम, वो पीस है। पीस यानी एकदम शांति, शांति का मजहब है। और शांति अगर कोई फैलाता है तब जाके उसको हुक्म होता है कि आप इसका दिफा करो, अपना दिफा करो, लोगों के अंदर से जुल्म मिटाओ। तो फिर मैं यही कहूंगा कि जब ऐसे लोगों ने, बहुजन के जो महापुरुष हैं और दूसरे महापुरुष हैं, उन लोगों ने अगर हमारे दीन की तारीफ की है, हमारे कुरान की तारीफ की है, तो इसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता। और मैं फिर और आगे बढ़कर मैं बात करूं तो देखिए, एक किताब है जो एक क्रिश्चियन ने लिखी है। उस किताब का नाम है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन्स इन हिस्ट्री, ये नाम है। यानी उन्होंने 100 लोगों में से सबसे बेहतर इंसान कौन है, उस पर उसने एक लिस्ट बनाई। रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन इन हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री में आज तक जब से इंसानियत बनी है तब से। वो जो बुक है 1978 की है और लिखने वाले का नाम है माइकल एच हार्ट, ये एस्ट्रोफिजिक्स है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो लिस्ट बनाई है उसमें सबसे पहले ऊपर नाम हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा है। तो देखिए, उनके नजदीक, क्रिश्चियनों के नजदीक, बहुजन के महापुरुषों के नजदीक हमारे पैगंबर का दर्जा बुलंद है, हमारे कुरान का दर्जा बुलंद है, हमारे दीन का दर्जा बुलंद है। तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि ये इस्लाम में से ही उठकर कोई अगर इस तरह खुराफात बके, तो किस तरह उसकी बातें मानी जा सकती हैं? बल्कि मैं कहूँ कि ये बिल्कुल झूठा इंसान है। अगर आप लोगों के दरमियान ऐसे वीडियो आते भी हैं तो आप लोग भी इसका दिफा करें और इन पॉइंट्स को लेकर झूठा करार दें। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अब जो वो इस्लाम से खारिज हो गया है, उसको निकाला नहीं बल्कि उसको खुद खुदा ने निकाला है। अब जो आपके यहाँ आया है या किसी दूसरे मजहब में पनाह ले रहा है, तो वहाँ भी उसको अगर पनाह ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है, और उसको ना
घर का होना चाहिए ना घाट का होना चाहिए, और वो दर दर भटकते रहना चाहिए। इस तरीके से अगर हो जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि मैंने ये उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि हमारे बहुजन समाज वालों को मैंने ये मुखातिब करके उनको बताने की कोशिश की है कि असलियत क्या है। और जहाँ तक कुरान की बात है, मैंने 2 वीडियो बनाया है, अगर मुनासिब समझूं तो और भी उसकी जो बातें हैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।